can't wait to leave this town, 'cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. হ্যালো এভরিওয়ান, আমি সরজিৎ আর তোমরা দেখছো রাইডার্স পুস্টে। গুড মর্নিং ফ্রম ঋষিকেশ, যোগা ক্যাপিটাল অফ দি ওয়ার্ল্ড। তো আমি পৌঁছে গেছি ঋষিকেশে, কিন্তু কিভাবে পৌঁছালাম, কবে পৌঁছালাম, যদি এই যে ভিডিওটা আছে এটা ফার্স্ট দেখছো, তাহলে উত্তরাখণ্ড সিরিজের এর আগে আরও 3-4টে ভিডিও আছে, আগে সেইগুলো দেখবে, তারপরে এই ভিডিওটা দেখবে, তাহলে বুঝতে পারবে যে কোথা থেকে আমি শুরু করেছি উত্তরাখণ্ড ঘোরা। এখন আজ হচ্ছে পঞ্চমী, তো সবাইকে শুভ পঞ্চমী। এই বছর আমি কলকাতায় নই, আছি উত্তরাখণ্ডে। চারিদিকে প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছে, আর আমি এক্স্যাক্টলি দাঁড়িয়েছি গঙ্গা নদীর পাশে। আমি পৌঁছে গেছি একদম লক্ষ্মণ ঝুলার সামনে। এক্স্যাক্টলি দেখতে পাচ্ছ আমার পেছনে এদিকে কোথাও লক্ষ্মণ ঝুলা রয়েছে। এই যে লক্ষ্মণ ঝুলা, এই মুহূর্তে লক্ষ্মণ ঝুলা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ, কারণ এখানে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক চলছে। যা হয় কলকাতায় তো কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক, এখানেও কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক, বাট কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কের জন্য এই মুহূর্তে বন্ধ আছে, তো লক্ষ্মণ ঝুলায় ওঠা যাবে না। এই লক্ষ্মণ ঝুলা খুলতে প্রায় বছর ধরে বলছে ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বেস্ট ব্রিজ এখানে তৈরি হবে, আর কনস্ট্রাকশন করছে একটি জাপানিজ কোম্পানি। আর এক্স্যাক্টলি আমার পেছনে যে বড় মন্দির টাইপের জায়গাটা দেখা, 13 মঞ্জিলা মন্দির মহাদেবের। তো বেরিয়ে পড়েছি হেঁটে, এখন হেঁটে ঘুরছি, চলো। আমি আছি হোটেল ঋষি যোগে। এখানে প্রায় সমস্ত হোটেলের নামের সাথে যোগ আছে, তার কারণ এখানে প্রায় সমস্ত হোটেলে যোগার কনসেপ্ট আছে, চাইলে করতেই পারো। আমার তো এরকম কোনো কনসেপ্ট নেই যে করার। আর বেসিক্যালি এই হোটেলটা সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস রিভার ভিউ। এক্স্যাক্টলি দেখতে পাচ্ছ আমার সামনে যেখান দিয়ে নদী দেখা যাচ্ছে, আর একদম পাশে হলো লক্ষ্মণ ঝুলা। বেসিক্যালি এইখানে যদি কেউ আসছো, হোটেল প্রাইস খুব বিশেষ হাই নয়, অ্যাভারেজ 450 টাকা থেকে শুরু করে 10,000 টাকা অবধি রুম অ্যাভেলেবেল আছে। বাট এই টাইমে রাশ একটু বেশি আছে, তো হাই প্রাইসের কোনো রুমই অ্যাভেলেবেল ছিল না। মোটামুটি অ্যাভারেজ প্রাইসের রুম পাওয়া গেছে, এবং সেটা যথেষ্ট ভালো। যে হোটেলটায় আমি আছি সেখানে খাবার আলাদাভাবে রুফটপ রেস্টুরেন্ট আছে, চাইলে ইউজ করতে পারো। আশেপাশে অনেক খাওয়ার দোকান আছে, চাইলে সেখানেও খাওয়া দাওয়া করা যেতে পারে। তো ঋষিকেশের ফার্স্ট ক্লাস ভিউ এনজয় করে আপাতত চলে এসেছি টি স্টলে। আমি তো পুরো রেডি হয়ে গেছি, এরপরে যেতে হবে, মানে অ্যাকচুয়ালি বেরিয়ে পড়বো। চেক আউট করে বেরিয়ে পড়ে ডাইরেক্ট চলে যাবো এখান থেকে রামঝুলা। এছাড়া যা ঋষিকেশের লোকাল সাইট সিন আছে সেগুলো করেই আজকে হরিদ্বার চলে যাবো, কারণ এরপর বাকিরা সবাই হরিদ্বারে চলে আসবে। আর একবার হরিদ্বার চলে এলে তারপরে ওখান থেকে শুরু হবে অ্যাকচুয়াল আমি যে কারণে উত্তরাখণ্ডে এসেছি। আমি অ্যাকচুয়ালি উত্তরাখণ্ডে মুসৌরি বা ঋষিকেশের জন্য আসিনি, এসেছি অন্য একটা কারণে। তো সেটা শুরু হবে হরিদ্বার পৌঁছানোর পর থেকে, আর আমার সাথে আরও অনেকেই আছে, তারা পৌঁছানোর পর থেকে। আজকে হরিদ্বার পৌঁছে যাবো, আর বাকিরা আসবে 2 তারিখ। তো ততক্ষণ পর্যন্ত যা যা উত্তরাখণ্ডে দেখার আছে সেগুলো আমি দেখে নিচ্ছি। আজ ঋষিকেশ দেখে হরিদ্বার পৌঁছে যাবো। তো ঋষিকেশের রাধা বৌদি রেস্টুরেন্ট থেকে সকালে ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট করে নিচ্ছি, এরপর বেরিয়ে পড়বো হরিদ্বার যাওয়ার জন্য। সঙ্গে যা যা লোকাল সাইট সিন আছে সেগুলো করবো। এখন টাইম আপডেট সকাল 10:44 বাজে, 11টা নাগাদ বেরিয়ে পড়বো এখান থেকে। আর এই হলো দাদা বৌদির রেস্টুরেন্ট, দাদা বৌদির হোটেল। বেসিক্যালি আমি জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম এটা ফ্র্যাঞ্চাইজি নেওয়া দাদা বৌদি হোটেল, যেটা হরিদ্বারে আছে, তাদের কাছ থেকে। কোথাও ননভেজ কিছু পাওয়া যায় না, শুধু ভেজই পাওয়া যায়। তো যারা ননভেজ খাও তাদের জন্য খুব সমস্যা। আমি লাস্ট 4-5 দিন ধরে যা আছি শুধুমাত্র ভেজই খাচ্ছি, এবং আর কিছু পাওয়া যায় না। দেখা যাক, বেরিয়ে পড়ি। আমি পৌঁছে গেছি রামঝোলা। বেসিক্যালি আমাদের ওখান, আমি লক্ষ্মণ ঝোলার যে হোটেলে আমি ছিলাম সেখান থেকে 2.5 কিলোমিটার ডিস্টেন্স ছিল এই রামঝোলা। তো চলে এসেছি রামঝোলায়, দেখতেই পাচ্ছ এক্স্যাক্টলি রামঝোলাতেই আছি। ব্রাইট এক্সপোজারের জন্য হয়তো কিছু ইস্যু হচ্ছে। আর এই হলো রামঝোলা। গাড়িতে বাবা মা বসে আছে, আমি শুধু একাই নেমেছি, তবে ক্রাউড আছে প্রচণ্ড বেশি রামঝোলাতে।
রামঝুলায় উনি হচ্ছেন আমাদের গাইড। কি আছে, কি বিষয়ে কতটা ভালো আছে সব কিছু দেখার জন্যই আমি ওনাকে নিয়েছি। অবশ্যই ওনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দেবো। যখন তোমরা কেউ আসছো রামঝুলা দেখতে, ওনার সাথে যোগাযোগ করবে। शिवानंद झूला, मगर लोग राम झूला बोल देते हैं क्योंकि लक्ष्मण झूला आगे होता है। ये सन 1986 का बना है, यूपी गवर्नमेंट बनाई है। स्वर्ग आश्रम लिखा है ना, हाँ। बाबा काली कमली वाले स्वामी इस स्थान का नाम है स्वर्ग आश्रम बाबा काली कमली वाले स्वामी आत्म प्रकाश जी महाराज। इसको स्वर्ग आश्रम क्यों बोलते हैं? एक संत आए जो बाल योगी थे, आके यहाँ बैठ करके पूजा करने लगे। उनको पांचों पांडवों की कुछ नचाने मिले। पांचों पांडवों ने स्वर्ग गमन के समय यहाँ पर विश्राम किए थे। चार भाइयों ने बर्फ में गल के खत्म हो गए। युधिष्ठिर एक बार झूठ बोले थे अश्वत्थामा, उनका एक अंगुली बर्फ में गल गया, वो डायरेक्ट स्वर्ग। बाबा जी ने यहाँ से पैदल यात्रा की चारों धाम। चारों धाम से यात्रा करने के बाद बाबा जी रामेश्वरम गए। रामेश्वरम से एक शिवलिंग लाए जिसका यहाँ स्थापना करके पूजा करते थे, यहाँ विश्राम करते थे। बाबा जी ने ब्लैक ब्लैंकेट काले कम्बल अपने शरीर पर डाल करके तपस्या करते थे। अंधेरे में उजाला की खोज की। यहाँ के लोगों के पास शिक्षा नहीं था, खाने पीने का सिस्टम नहीं था। बाबा जी ने पढ़ा लिखा करके टीचर तैयार किए, स्कूल खुलवाए, उनको खाने पीने का सिस्टम बनाया। यहाँ के लोग बाबा जी को भगवान की तरह मानने लगे। बाबा जी को भगवान की तरह मानने लगे। यहाँ यात्री धीरे धीरे आने लगे, दान डोनेशन देना शुरू किए। बाबा जी के पास जब काफ़ी मात्रा में पैसा हो गया तो गांव के लोगों को बुला के मीटिंग बनाए। बोले भाई मेरे पास इतना पैसा हो चुका, मैं सन्यासी आदमी हूँ, मैं क्या करूँ? गांव के लोग बोले आप जो बोलेंगे मैं उसको मानूँ। बाबा जी बोले मैं चारों धाम की यात्रा पर गया था तो मेरे सर छुपाने के लिए कहीं कोई बिल्डिंग, कोई मकान, कोई आश्रम नहीं मिला। मेरे दिल में भावना बनी एक आश्रम बनवाने के लिए। पैसा तो मेरे पास हो गया मगर ज़मीन नहीं। गाँव के लोगों ने 5 किलोमीटर की एरिया के भूमि के नाम से डोनेशन में डाले। बाबा जी ने 4000 रूम बनवाए। एक रूम्स का किराया 150 होता है। 3500 कुटिया बनवाए। सिंगल कुटिया में सिंगल सन्यासी रहता है, गंगा स्नान करके पूजा भजन भाव करता है। भोजन के समय सन्यासी अनुक्षेत्र लंगर में भोजन लेता है। इसलिए इसको बोला गया स्वर्ग आश्रम बाबा काली कमली वाले स्वामी आत्म प्रकाश जी महाराज। दर्शन करना तो अंदर जाके दर्शन कर लीजिए, नहीं तो यहीं कर लीजिए। You can't wait to see me now, 'cause lately you've been feeling down. You lay awake alone at night. Oh, like your life inside a car. Forget the world and drive. बोलिए। आप लोग या जो भी पब्लिक इस ऋषिकेश में आती है लक्ष्मण झूला के नाम से आती है। लक्ष्मण झूला को ना राम लक्ष्मण जी बनाए हैं, ना राम झूला को राम जी, और ना ही जानकी झूला को जानकी। लक्ष्मण झूला बोलते क्यों हैं? जिस समय भगवान राम ने रावण का वध करके अयोध्या वापस गए, अयोध्या पहुंचते ही भगवान राम का माइंड चेंज हुआ। मैं तो रावण का वध करने आया था, रावण का वध कर दिया, अब मेरा इस दुनिया में कोई कार्य नहीं है, किस तरह से मैं अपने जीवन लीला को मोड़ के समाप्त करूँ। भगवान राम अपने कुल गुरु वशिष्ठ से बोले आप अपने कुटिया में जाके विश्राम करिए, हमको भी विश्राम करने दीजिए, आप थक चुके हैं। भगवान राम जानते थे कुल गुरु वशिष्ठ यहाँ रहेंगे तो जो कार्य आगे करने जा रहा हूँ करने नहीं देंगे। भगवान राम एक ही रात एक ही दिन अयोध्या में सोने के बाद अपने ही नीतियों के द्वारा अपने ही पत्नी को कलंकिनी घोषित करके अयोध्या से निकाल के जंगल भिजवा दिए। जहाँ जाने के बाद सीता का नाम चेंज करके वन देवी नाम पड़ गया। वन देवी के 2 पुत्र हुए लव एंड कुश। लव कुश डेली राम की कथा सुनते थे। राम की कथा सुनने के उपरांत लव कुश बोले माता जी ये राम था कैसा जिसको लोग पुरुषोत्तम बोलते हैं? हमारे समझ से दुनिया में सबसे गलत आदमी है, जो सब कुछ जानते हुए वो जानता था जब कि मेरी पत्नी साफ सुथरा है, क्यों उसको कलंकिनी गोती करके जंगल भेजा? वो बेचारी कैसे रहती थी? लव कुश को क्या पता जिससे बात कर रहा हूँ वही सीता है। लव कुश बोले जिस दिन पा जाऊँगा राम को पकड़ के जवाब लूँगा, जवाब नहीं देंगे छोड़ूंगा नहीं। इधर भगवान राम अयोध्या में राज्याभिषेक कराने के बाद अश्वमेध यज्ञ की तैयारी पड़ गई। अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर ही रहे थे, उसी के उपरांत उनके कुलगुरु वशिष्ठ पहुँचते ही उनके कुलगुरु वशिष्ठ भगवान राम पे बहुत नाराज हुए। बोले आपको ज्ञान होना चाहिए कि रावण कर्मों से राक्षस था, जात से ब्राह्मण था। हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्म हत्या पाप बहुत बड़ा पाप होता है, बिना इसका प्रायश्चित किए आप कोई कार्य नहीं कर सकते। भगवान राम बोले गुरु जी मेरे सामने कुछ मजबूरियाँ हैं। हनुमान जी को अलग घमंड हो गया, लंका मैंने जीता। लक्ष्मण जी को अलग घमंड हो गया, लंका मैंने जीता। सबसे पहले मुझको उनके घमंडों को स्थापित करना है। भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े पर एक बोर्ड लिख के छोड़ दिए, जो इस घोड़े को पकड़ेगा राम से युद्ध करेगा। उस घोड़ा और बोर्ड को देखते ही लोग दौड़ के पकड़े, बोले अब राम मिलेगा, अब जवाब देगा। उनकी माता जी देखी हाथ जोड़कर बोली बेटे छोड़ दो इस घोड़े को, घोड़ा भी बाधी थे, इसको देखो क्या लिखा है, तुम बच्चे हो, तुम राम से युद्ध नहीं कर सकते। वो लंका में चढ़ के रावण को मारे। लव कुश बोले आप अपना कार्य करिए, मेरी जिंदगी का मेन काम यही है, जवाब लेना राम।
लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न यहाँ तक हनुमान जी भी बांधे गए। लास्ट में भगवान राम गए, बोले बच्चे घोड़ा छोड़ दो, उन्हें युद्ध करना पड़ेगा। लव कुश बोले अगर राम हो तो हमसे बात करो, और राम नहीं हो तो तुम भी युद्ध करो, तुमको भी बांध के गिराऊंगा। पिता पुत्र वाक्य युद्ध के अंतर्गत युद्ध के कगार में खड़े हो गए। इनकी माता जी सुनी, दौड़े हुए आई, बोली बेटे इनसे युद्ध मत करने, तुम्हारे पिता हैं। राम ने सीता को देखते ही दौड़े, सीता सीता सीता। सीता जी बोली खबरदार, मेरे परछाई के भी बगल में मत आना। आज तक हमारे पुत्र भी नहीं जान पाए कि हमारे बाप कौन है। सीता बोलने आए हो, आपको देख करके मेरी आंखें लग रहा है फूट जाए, मैं मर जाऊँगी, आपको देखना नहीं चाहते हूँ। माता जी मुझको अपने गोद में ले लो, इस व्यक्ति को देखना नहीं चाहते। इतना सुनते ही पृथ्वी डिवाइड हो गई, फट गई। सीता जी पृथ्वी माँ के गोद में चली गई। भगवान राम यही चाहते थे। भगवान राम की नीति यही थी कि मैं अपने जीवन लीला को समाप्त करने से पहले जानकी को समाप्त करवाऊँ। भगवान राम अपने कुल गुरु वशिष्ठ से बोले अब आप आदेश करिए, क्या आदेश करना चाहते हैं। उनके कुल गुरु वशिष्ठ बोले हमारे ब्रह्म हत्या गौ हत्या सबसे बड़ा पाप होता है, आप तत्काल जा करके इस भूमि को छोड़िए, देव भूमि में जाइए, देवप्रयाग बद्री केदार जाएंगे तो रास्ते में पड़ता है 7 किलोमीटर आगे, जहाँ पे अलकनंदा भागीरथी गंगा का संगम होता है। ऑल वर्ल्ड में भगवान श्री रामचंद्र जी का सिंगल स्टैचू मिलता है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र ने ब्रह्म हत्या के पाप करने के लिए वह तपस्या किए थे। लक्ष्मण झूले के पास क्रॉस करने का कोई साधन नहीं था। भगवान राम बोले भाई लक्ष्मण में कैसे गंगा क्रॉस करें। लक्ष्मण जी शेषा अवतार थे, भगवान राम के आज्ञाकारी भाई थे। धनुष बना चढ़ाए, एक शक्ति का ब्रिज बनाया, जिससे भगवान राम गंगा क्रॉस किए। यह ऋषि के थे, ऋषि मुनि साधु महात्माओं की भूमि है। यहाँ के साधु महात्माओं ने अपने योग शक्ति से देखा कि लक्ष्मण जी ने शक्ति का ब्रिज बनाए थे, तो उसी स्थान पर एक लकड़ी और रस्सी का झूला बनाया, जिससे सिंगल पर्सन एक आदमी पास उस पास खींचा जाता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेजों की सरकार थी। कलकत्ता के 2 भाई सेठ आए थे, जिनका नाम था सूरज मलनागर में, अपने माता जी को लेकर चारों धाम की यात्रा कर रहे थे। उनके माता जी के सामने लकड़ी और रस्सी का झूला टूट गया, यात्री गंगा जी में गिर गया। उनकी माता जी बोली बेटे जब तक इसको पक्का पुल नहीं बनवाएगा मैं कोई यात्रा नहीं करूँगी। सूरज मलनागर में ब्रिटिश गवर्नमेंट को 2,40,000 चांदी के सिक्के ढोने से हमें देकर पास करवाए, अपने जेब के पैसे से बनवाए, जिसको बोलते हैं हैंगिंग ब्रिज, लक्ष्मण झूला। सेम ब्रिज राम झूला, सेम ब्रिज जानकी झूला। लक्ष्मण झूला डैमेज हो गया, उसको बंद करके खुदाई हो रहा है, दूसरा झूला बनेगा। यह झूला जिस दिन बन के तैयार होगा इस दुनिया का सबसे खूबसूरत झूला होगा। नीचे कांच होगा, साइड में कांच होगा, ऊपर कांच होगा, बीच में ऐसी बल्ब लगेंगे। आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे सर, कोई भी यात्री किसी भी गाइड से पूछता है ये कहाँ है कैसे, किसी दुकान के सामने, तो गाइड या तो वहाँ हट जाता है, नहीं तो मजबूरी में वही भाषा बोलता है जो दुकानदार बोलता है। गाइड को इसी स्थान पर आना होता है, गाइड किसी झगड़ा नहीं करता। इस हिमालय गढ़वाल का लोकल फेमस ओनली फॉर 3 आइटम होता है जो मनुष्य को जीवन ज्योति देता है। इसके विषय में मैं गीता भवन में आपको जानकारी दूँगा। बोलिए गंगा मैया की जय। real far, put that record on again. Oh, my love, it's you and I. Close, close, and cool like this fire. So reach for the stars, 'cause we're aiming high. इस मंदिर का नाम है गीता भवन। गीता प्रेस गोरखपुर वालों की तरफ से मंदिर होता है। ये मारवाड़ी लोगों के ट्रस्ट में पड़ता है। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी का स्टैचू मिलता है दर्शन करने के लिए। लक्ष्मी नारायण का पट तो बंद है, दर्शन नहीं मिल पाएगा। उसके पहले दर्शन करिए आप इस वृक्ष का, एक वृक्ष का। जितना भगवान श्री कृष्ण से मीरा प्रेम करती थी, उतना ही भगवान श्री कृष्ण इस वृक्ष से प्रेम करते थे। इसका नाम है कदम का पेड़। ये देखिए छोटे छोटे लिटिल पत्ते हैं, इसका नाम है लाल चंदन, रक्त चंदन। इस वृक्ष को देखिए, इसका नाम है रुद्राक्ष का पेड़। रुद्र मीन्स शिव, आक्ष मीन्स आंसू। जिस समय सती ने यज्ञ में प्रवेश कर गई तो भगवान शिव डिस्टर्ब हो गए तांडव नृत्य के हिमालय में। जितना बूंद आंसू जहाँ गिरा उतना मुखी रुद्राक्ष पैदा हुआ। पहला नंबर होता है जड़ी बूटियों की औषधियाँ, वो हिमालय से कलेक्शन करके तैयार की जाती हैं। दूसरा आइटम होता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष 3 देशों में पाया जाता है, इंडोनेशिया, नेपाल, उत्तराखंड, हिमालय। रुद्राक्ष में एक मुखी रुद्राक्ष कहीं कोई बेचता हो तो खरीदने के चक्कर में मत पड़िएगा। जो भी व्यक्ति बेचेगा आर्टिफिशियल बेचेगा, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष सिर्फ नेपाल में होता है। 12 साल में एक पेड़ पर एक ही पाया जाता है, जिसको ग्रंथों में लिखा गया है। एक मुखी रुद्राक्ष डायरेक्ट भगवान शिव को रूप माना जाता है, तीसरा नेत्र, जिसका मात्र दर्शन कर लेने से ही मनुष्य से जाने अनजाने में जो गलतियाँ हुई रहती है उसका नाश हो जाता है। रुद्राक्ष में रिसर्च किए तो फर्स्ट आदि गुरु शंकराचार्य दिन होने चारों धाम की स्थापना की। सेकंड रिसर्च बाबा रामदेव पतंजलि। रुद्राक्ष में पंचमुखी रुद्राक्ष माला जितने बारीक साइज का होता है आयुर्वेद में काम आता है। ब्लड प्रेशर, हाई लो, हार्ट वीकनेस, पेट से लगी सारी संबंधित बीमारियों को जड़ से समाप्त कर देता है। पहनने से 50 गुना ज़्यादा फायदा करता है। तांबे या मिट्टी के बर्तन में 1 गिलास पानी डालिए, माला को शाम को उसमें डालिए, सुबह खाली पेट कीजिए।
तीसरा आइटम होता है स्टोन। हिमालय में आगे बढ़ते हैं, आपको आइस की पहाड़ियाँ मिलती हैं बर्फ़ की। जो आइस हज़ारों हज़ारों साल पत्थर के नीचे दबे रह जाते हैं, इस पर सूरज की रोशनी नहीं लगती, हवा नहीं लगता है, वह आइस अपना रूप बदल करके स्फटिक स्टोन हो जाते हैं, फुल स्टोन। जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए रामेश्वरम पहुँचे तो उनका दिमाग नहीं काम कर रहा था कि मैं कैसे समुद्र क्रॉस करके रावण से युद्ध लड़के जानकी वापस आऊँ। हनुमान जी सब जानते थे, उड़ के गए, अपने पूँछ में बांध करके स्फटिक लाया बहुत बड़ा, बोले अपने हाथों द्वारा तराश करके शिवलिंग का स्थापना करिए, पूजा करिए, रास्ता मिलेगा। आज भी वो शिवलिंग वही है, भगवान राम के हाथों द्वारा स्थापित है। कहाँ पे? रामेश्वरम में। रामेश्वरम। अच्छा। जब पूजा किए भगवान राम तो उनका दिमाग काम किया कि नल नील को वरदान है, जिस पत्थर पर राम नाम लिख के पानी में डाल देंगे डूबेगा नहीं। स्फटिक कुल स्टोन होता है, शक्ति का रूप माना जाता है। स्फटिक की माला पहनने से जिनको बहुत गुस्सा आता है, टेंशन आता है, मेमोरी क्लियर काम नहीं करती है, उनके यूज में आता है। जब से टीवी पर दिखाया जाने लगा सूर्य यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, तब से लोग मार्केट में कांच के बना के बेचने लगे। सूर्य यंत्र वास्तु दोष के लिए होता है, हर व्यक्ति अपने रहने के लिए मकान बनवाता है, उस ज़मीन के अंदर हड्डी है, सिक्का है, पैसा है, दरवाज़ा उल्टा सीधा, वास्तु दोष। नकारात्मक ऊर्जा मकान के अंदर नाती रहती है, एक लाइन से पैसा था 4 लाइन से निकल जाता है। तीसरा आइटम आज गुरु शंकराचार्य रिसर्च कर बनाए, सिंगल स्टोन पहनते, शूट किया तो फायदा किया, नहीं शूट किया नुकसान किया। 9 ग्रह शांति, 9 व्रत माला, बैलेंस होता हो। एक ग्रह अगर नुकसान करता है तो अवग्रह मिल करके उसको आपके कार्य को आगे से आसानी बढ़ाते हैं। एक मुख्य रुद्राक्ष दर्शन, नॉट फॉर सेल, ओनली फॉर दर्शन। लैब के टेस्टर होते हैं, पूरी जानकारी देते हैं। उत्तरांचल रतन निगम, रास्ते में ही पड़ेगा, दर्शन करा के फिर आपको जानकारी दी। দেখতেই পেলে গাইডের কাছ থেকে সমস্ত রকম ইনফরমেশান নিতে নিতে আমরা রামঝুলা থেকে চলে এসেছি জানকীপুল। জানকীপুলের ওপারে আমার গাড়ি দাঁড়ানো আছে, তো জানকীপুল ক্রস করতে হবে, এটাই ক্রস করা যায়। সমস্ত যত ইনফরমেশান আছে গাইডের কাছ থেকে পেলে সেই সমস্ত ইনফরমেশান তো তোমরা এখান থেকে পাচ্ছ, বাট সমস্ত ইনফরমেশানই হিন্দিতে আছে। তো যারা হিন্দি বোঝে না তাদের জন্য আমি চেষ্টা করব বাংলায় সাবটাইটেল দিয়ে দেবো। আর বাকি এখন যাচ্ছি জানকীপুল, জানকীপুলের ওপারে থেকে গাড়ি ধরে যাবো অন্য। যে গাইডের কাছ থেকে সমস্ত ইনফরমেশান এখনও পর্যন্ত দিলাম, সেই গাইডের কন্ট্যাক্ট নাম্বার আর নাম অবশ্যই ডেসক্রিপশানে বা ভিডিও তলায় দিয়ে দেবো। সেখান থেকে তোমরা যদি কখনও আসছো তো কন্ট্যাক্ট করতে পারো। যথেষ্ট ভালোভাবে বলেছে এবং খুব বিশেষ চার্জেস না, হয়তো বেশি থাকলে পার হেড একটা অন্য কোনো চার্জেস আছে, বাট এখানে অ্যাভারেজ পার হেড চার্জেস হলো 100 টাকা। গুড আফটারনুন ফ্রম হরিদ্বার। তো আমি হরিদ্বারে পৌঁছে গেছি, কিছুক্ষণ হয়েছে। এবার যাবো লাঞ্চে, তারপর একটু রেস্ট নেবো, আর তারপরে হরিদ্বারের হর কি পৌরি ঘাট দেখতে যাবো। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সন্ধ্যা আরতি আছে। আবার কিছুক্ষণ পর দেখা হচ্ছে। আমি যেখানে আছি এটা হচ্ছে শ্রী চিন্তামণি আশ্রম, খুবই ভালো, খুবই অ্যাফোর্ডেবল, কারণ আমি এখানে আরও বেশ কয়েকদিন থাকবো। তো দেখা হচ্ছে কিছুক্ষণ পরে। বেরিয়ে পড়েছি হরিদ্বারের মার্কেট ঘুরতে। এখান থেকে যাচ্ছি সোজা হর কি পৌরি ঘাট, আর হর কি পৌরি ঘাট থেকেই আমাদের মেন আরতি দেখতে পাওয়া যাবে। প্রচুর ভিড় আছে, প্রচুর ভিড়। ওয়েলকাম ব্যাক এগেইন। আমি ফিরে এসেছি হর কি পৌরি ঘাটের আরতি দেখে। এখন বাজে প্রায় 9টা। এরপর আমি যাব ডিনারে, আর তারপরে আজকের মতন দিন শেষ। আশা করছি হর কি পৌরি ঘাটের যে আরতি সেটা তোমাদের খুব ভালো লেগেছে, আর টোটাল ভিডিওটা খুব ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ মেকিং পার্ট অফ ইয়ার ডে। আইল সি সুন টু দি নেক্সট ব্লগ। আনটিল নেক্সট টাইম, সাইনিং আউট সৌরজিৎ। গুড নাইট।